Hello guys, welcome back to our channel. I am Nikita Arora, a luxury bridal makeup artist and an educator. So first of all, wish you a very happy new year, and this is our first video post New Year. So I'm here today to talk a lot to all my audience because I do this very rare on my YouTube. I have always been posting tutorials and makeup educational videos, but I never come in person. So I'm here to tell you a few things and to discuss bridal do's and don'ts. So yeah, let's get into the video. So I am here today with another video, and I'm starting this series with y'all where I am going to solve all the problems of all the brides to be. So if you're new to my channel, I am Nikita Arora, a luxury bridal makeup artist and an educator. So please do subscribe our channel because I am going to keep posting such content where I'm going to solve real life problems of all our brides to be. And why brides to be? और सारी लड़कियों की हम स्किन, हेयर और मेकअप को लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इस चैनल पे. So today's video is on how to avoid those top 10 mistakes that a bride to be usually does. So I'm going to explain in detail and tell you to not to do this mistake. And if you're a bride watching yourself, subscribe our channel and come back to this video every time you think that you're doing a mistake. Plus, if you're not a bride to be, share this with your bestie who is going to get married in 2026. So let's get started. Okay, so number one is trying new treatments too closer to the wedding date. Say suppose you're getting married in next 30 days. I would not suggest you to go and try new treatments, new peels, new facials, new micro needling treatments. Those are not needed if you have not done it before. I always suggest my brides to be that go to a dermat, get your skin checked at least 90 days before your wedding, and don't sit with random products in your vanity and start using just because somebody has told you to use that. Until a professional who has given you prescribed products or a professional makeup artist like us who have suggested you products, because we use so many products from our vanity on daily basis, so we still can suggest you, but still I will tell all my brides to go to a dermat and get it prescribed and get your skin checked and then move forward with any kind of treatment. If you are willing to try something new and you want to rejuvenate your skin, make it look better, because skin is the first thing that makes your makeup look good. If your skin is good, your makeup will 100% stand out. But if it is not, then please don't try random things at home remedies or suggested product by friends and family. I will always suggest go to a dermat and get it checked. अगर आपके बजट में कोई डर्मैट नहीं है, आपको लगता है बहुत महंगा जा रहा है ये, तो आप कोई नॉर्मल से डर्मैट के पास चले जाओ जिसकी कंसल्टिंग फीस कम हो, बट एक प्रोफेशनल के पास जाओ. अगर आप एक प्रोफेशनल के पास नहीं जाते हो तो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि बिलीव मी, आई हैव सीन ब्राइड्स who use random products and then they get acne, allergies and they are on medicines और एक साल तक उनकी वो allergies नहीं जाती है. So I suggest you to not try something new closer to your wedding date, at least 30 days before. अगर आप 90 days पहले भी experiment करते हो तो अच्छी बात है, आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा हील होने का अगर आपकी स्किन में कुछ इशू हो जाता है तो. बट अगर आप वेरी क्लोजर टू द वेडिंग ट्राई करोगे, वो वेडिंग के दिन भी एक्ने मार्क रहेगा, आपको एक्टिव एक्ने रहेगा, एलर्जी रहेगी, जिससे मेकअप आर्टिस्ट अच्छा मेकअप नहीं कर पाएगा. सो दिस इज योर टिप नंबर 1, डू नॉट ट्राई एनीथिंग क्लोजर टू योर वेडिंग. ओके. Mistake number 2, thinking over exfoliating will give you that instant glow. स्क्रब करते जाओ और आपको लग रहा है वाओ, मेरी तो सारी डेड स्किन निकल गई है और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ और आज तो एकदम मैं चमकने वाली हूँ. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपको एक्सफोलिएट करना है तो पहले आप समझ लीजिए
दो टाइप के एक्सफोलिएशन होते हैं, एक होता है केमिकल एक्सफोलिएशन और दूसरा होता है फिजिकल एक्सफोलिएशन। तो केमिकल एक्सफोलिएशन आप AHA BHA पील्स यूज करके आपकी स्किन की टॉप लेयर को हल्का हल्का सा बर्न कर लेते हो, जिससे आपकी सारी डेड स्किन निकल जाती है। और आपका जो फिजिकल एक्सफोलिएशन होता है, विच इज ऑप्शन नंबर 2, वो एक होता है प्रॉपर घर पे स्क्रब करना। Now, please girls, do not use that walnut scrub and peach scrub and that scrub. प्लीज आपके वो नेचुरल ऑयल्स को निकाल रहा है, स्किन से रिप ऑफ कर रहा है। इतना हार्श होता है वो स्क्रब कि आपको वो नेचुरली स्किन पे छोटे छोटे से इंजरीज दे देता है, डैमेज हो जाता है, आपको पिट्स आने लगता है। मैं एक पिट्स की यहाँ फोटो लगा दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि ओवर एक्सफोलिएट करने से आपको पिट्स होते हैं, जो एक्चुअली पिंपल को भी आप ऐसे अगर पॉप कर देते हो तो भी आपको वो पिट्स होते हैं। लेकिन मोस्टली जितने केसेस मैंने देखे हैं वहां पर ये पिट तब होते हैं जब आप ओवर एक्सफोलिएट करते हो और आपके स्क्रब के दाने बहुत मोटे होते हैं। तो आप पूछोगे तो स्क्रब करे तो करे कैसे? केमिकल तो मैं घर पे मना करूंगी, जब तक आपकी डर्मेट आपको सजेस्ट नहीं करती आप केमिकल स्क्रब मत कीजिए घर पे, यानी AHA BHA पील्स कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के यूज ना करें जब तक आपको डर्मेट सजेस्ट नहीं करती है, या आप डर्मेट के पास भी जाके करवा सकते हो। अगर आपको फिजिकल एक्सफोलिएशन यूज करना है तो आप एंजाइम स्क्रब यूज करो, विच इज वेरी जेंटल ऑन द स्किन। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अभी टॉप 3 एंजाइम स्क्रब बताने वाली हूँ, जो है क्लेको ब्यूटी का। मैं सारी इमेजेस भी यहाँ लगा रही हूँ। तो फर्स्ट है क्लेको ब्यूटी, सेकेंड है हुडा ब्यूटी और थर्ड है फेस शॉप का। तो ये तीनों आप एंजाइम स्क्रब्स यूज कर सकते हो आपके बजट के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से। ये एंजाइम स्क्रब आपके स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करेंगे और आपके स्किन से नेचुरल ऑयल्स को रिप ऑफ भी नहीं करेंगे, एंड दे आर रियली गुड ऑप्शंस। क्या सोचो मैं पानी क्यों पी रही हूँ वीडियो के बीच में? बताती हूँ। क्योंकि आप ब्राइड्स टू बी को ऐसा लगता है कि हाइड्रा फेशियल करा लेंगे तो स्किन का हाइड्रेशन बढ़ जाएगा और ग्लो आ जाएगा, बट असली वो हाइड्रेशन नहीं है। असली हाइड्रेशन है पानी। तो अगर आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, एक्ने और पिंपल्स कम एक्टिवेट होंगे और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा इनर ग्लो मिलेगा। तो एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड आपका पानी है। हाइड्रा फेशियल या कोई भी फेशियल आपको करना चाहिए, बट एक लिमिट तक करना चाहिए, बट अंदर से तो यही काम करेगा। ऊपर से आपके फेशियल्स काम करते हैं पर अंदर से नहीं करते। और इनर ग्लो के लिए आपको इनर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं ब्राइड्स को सजेस्ट करती हूँ कि कहीं पर भी बिटवीन 5 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर आपको पीना ही चाहिए, बिकॉज हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट along with 8 hours of sleep. Using random Instagram skincare products. आपने देख लिया किसी ने कोई फेशियल पैक लगा लिया है, कोई हेयर रिमूवल लगा लिया है, किसी ने कोई फेस वॉश यूज कर लिया है तो वो गोरे हो गए हैं, उनके एक्ने चले गए हैं, उन्होंने ऐसे वाव रिएक्शन दिया है, उनके 5 लाख फॉलोअर्स है। तो मैं आपसे बोलूंगी कि ये उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर आप वो देख के प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप उससे पहले पैच टेस्ट कर लो। ठीक है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप जिनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो बहुत जेन्युइन है, तो ऐसा हो भी सकता है कि हाँ उन्होंने सच्ची में आपको अच्छा रिव्यू दिया हो, बट ये जरूरी नहीं है कि वो उनको सूट किया है तो आपको भी सूट करेगा। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगी कि आपको कोई भी प्रोडक्ट सजेशन मैं दूं या कोई और दे, आपको उससे पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो यूजुअली मेरी ब्राइड्स क्या करती हैं कि उनको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अगर मैं उनकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मुझसे एक बार पूछ लेते हैं या अपनी डर्मेट को पूछ लेते हैं कि मुझे प्रोडक्ट पसंद आया है, मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्या मैं ये यूज कर सकती हूँ? तो अगर उसे अपने डर्मेट से या मुझसे परमिशन मिल जाती है तो वो यूज करती है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी, रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट पे प्लीज खर्चा मत कीजिए। डिजिटल व्यूज आर इजी टू बाय। प्लीज डिजिटल रिव्यूज और व्यूज देख के आप प्रोडक्ट्स बाय ना करें। अगर आप कर भी रहे तो उससे पहले पैच टेस्ट करें। रुखसार, मैं जा रही हूँ। ये क्या है? सनस्क्रीन? नहीं, मुझे नहीं लगाना। क्या आप भी इसी तरह अपना सनस्क्रीन को इग्नोर कर रहे हैं? तो ये आपके लिए है। आपको बिल्कुल भी अपने सनस्क्रीन को इग्नोर नहीं करना है। सनस्क्रीन इज योर बेस्ट फ्रेंड।
जिस तरह आप आपके एक्स के टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं, वैसे आप अपने सनस्क्रीन को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, बिकॉज ब्राइड्स टू बी ये आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हो सकता है। जब आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो आपको जो डर्ट पोल्यूशन है वो डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट में आ जाता है। सनस्क्रीन जब आप नहीं लगाते तो यूवी रेज आपकी स्किन को हार्म कर देती है, आपको टैन दे देती है, साथ में आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि वो धूप से ही स्किन आपकी जल जाती है। आप तो उसके बाद आप कोई भी टोनर या सीरम या मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन जल रही है और प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, बट यूजुअली प्रोडक्ट में नहीं इशू होता है, बट आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि आपकी स्किन को वो बेयर नहीं होता है प्रोडक्ट। सो इसके लिए बिना सनस्क्रीन के घर के बाहर मत निकले। आते हैं सनस्क्रीन एप्लीकेशन पर। आपको सनस्क्रीन पी साइज अमाउंट में लगाना है ऐसा नहीं है, आपको सनस्क्रीन एटलीस्ट 2 to 3 फिंगर्स भर के लगाना है और उसके बाद आपको एवरी 3 आवर्स सनस्क्रीन को रीटच करना है। तो जब आप रीटच करते हो तब आपको एक पी साइज अमाउंट लेके रीटच करना है। कोई भी स्प्रे सनस्क्रीन आप डायरेक्टली फेस पे स्प्रे नहीं करोगे, क्योंकि वो स्प्रे फॉर्मेट में लाने के लिए उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो आपको ब्रीथ करने में और आपकी आंखों को हार्म कर सकते हैं। तो स्प्रे बना क्यों है? स्प्रे बना है बॉडी के लिए, फेस के लिए नहीं। अगर आपको स्प्रे सनस्क्रीन यूज करना है तो आपको उसे पहले हाथ पे स्प्रे करना है, वार्म अप करना है और फिर इस तरह से या इस तरह से लगाना है। दिस इज हाउ यू अप्लाई अ स्प्रे सनस्क्रीन, एंड रीअप्लाइंग सनस्क्रीन every 3 hours is utterly important. And another thing, if you think that your sunscreen is just one thing that will help you with tanning, no, it is not that. You have to cleanse, tone and moisturize also. So make sure कि आप स्किन केयर के सारे स्टेप्स फॉलो करें, तभी जाके आपको एक हेल्दी स्किन मिलेगी। So 50 SPF is the minimum amount जो आपको यूज करना है इंडिया की धूप में। और मैं आपको ये बोलूंगी कि बिना सनस्क्रीन के प्लीज बिल्कुल बाहर मत जाइए। सनस्क्रीन इज योर अल्टीमेट बेस्ट फ्रेंड। नॉट कंसल्टिंग अ प्रोफेशनल फॉर योर स्किन कंसर्न। मामी ने ये बोला, चाची ने ये बोला, बेस्ट फ्रेंड ने ये बोला, इससे वो बोला, उससे वो बोला, सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बट बिलीव मी, आपको ऐसा नहीं करना है। प्लीज आपके बजट में एक डर्मैट ढूंढिए, उसको जाके मिले। आजकल डर्मैट्स भी बहुत सारे ऑफर्स रखते हैं। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, वो लोग ट्रीटमेंट का कॉस्ट ले लेते हैं लेकिन कंसल्टेशन फ्री कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं फ्री कंसल्टेशन है तो प्लीज चले जाइए, अपना स्किन चेक करवाइए, उनसे एक प्रॉपर स्किन केयर लिखवाइए और उसके बाद आप आपका ट्रीटमेंट शुरू करें। रैंडमली प्रोडक्ट्स मत यूज कीजिए। नॉट रिमूविंग मेकअप प्रॉपरली। एज अ ब्राइड टू बी, जब आपका रोका हो जाता है या आपकी एंगेजमेंट हो जाती है तो आपका ससुराल में आना जाना लगा रहता है, लोगों से मिलना लगा रहता है, शॉपिंग पे जा रहे हो, प्री पार्टी कर रहे हो, बैचलर पार्टी कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, बहुत मेकअप कर रहे हो खुद से घर पे, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर रहे हो। आने के बाद आपको ऐसे लग रहा है नहीं नहीं मैं तो सो जाती हूँ, थक गई हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी बहन, जब आप मेकअप के साथ सो रहे हो तब आपकी स्किन 300 टाइम्स तक डैमेज हो रही है। तो इसके लिए मेकअप रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको डबल क्लेंजिंग टेक्निक बताऊंगी कि कैसे आपको रिमूव करना है। अगर आप ये टेक्निक जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक प्रॉपर अपडेटेड ब्राइडल स्किन केयर रूटीन की वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। लेकिन एक ही शर्त है, अगर मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि आपको ये देखना है तो ही मैं बनाऊंगी। सो डू कमेंट, और आपको आपका मेकअप रिमूव करना है। और अगर मैं आपको एक बेसिक सा रिमूवल टेक्निक बता दूं तो प्लीज एक प्रॉपर डेडिकेटेड मेकअप रिमूवर यूज करें जिससे आपका मेकअप अच्छे से जड़ से निकल जाए, और एक फेस वॉश करें और फिर आपका नाइट स्किन टाइम रूटीन करके आप सो सकते हैं। Application of your skincare products, very important topic. I have seen brides applying products on one and another without even thinking कि उनकी वो स्किन ले सकती है या नहीं ले सकती है। तो कैसे करना है ये? सो बेसिक रूल है CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश, टोनिंग मतलब टोनर और मॉइस्चराइजिंग मतलब मॉइस्चराइजर। लेकिन जब आप ये कर रहे हो तब आप अगर उसको बैक टू बैक कर रहे हो, फेस धो के आए, ठीक से ड्राई भी नहीं किया, टोनर लगा दिया, गीले टोनर पे आपने मॉइस्चराइजर लगा दिया। आप ऐसा मत करो। फेस क्लीन करके फेस को अच्छे से ड्राई होने दो। अगर आपका फेस कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा तो आप टोनर लगाओगे। टोनर आपको यूज करना है कॉटन पैड में और डैबिंग मोशन से लगाना है, ना कि ड्रैगिंग मोशन से। सो मेक श्योर कि आप टोनर कॉटन पैड से लगा रहे हो। उसके बाद वेट करो कि टोनर ड्राई हो जाए।
टोनर ड्राई होने के बाद आप लगा सकते हो मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर भी आपका सेमी ड्राई हो जाए, आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाओ। ऐसे नहीं कि बस एक के ऊपर एक लगा के निकल गए। सनस्क्रीन स्पेशली आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर लगाना चाहिए जब आप घर से निकलने वाले हो, क्योंकि अगर आप बिफोर मतलब निकलते निकलते अगर आप लगाओगे तो आपका वो सनस्क्रीन बाहर असर ही नहीं करेगा। सनस्क्रीन को स्किन पे एक्टिवेट होने के लिए 30 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट इज योर लिप्स। Brides, you are ignoring the most sexiest part of your face, that is your lips. शादी होने वाली है तो लिप्स तो सबसे ज्यादा काम आएंगे। ओके, एनीवेज, सो लिप्स का ध्यान रखना है, चैप्ड लिप्स नहीं होने चाहिए। प्लीज मेकअप आर्टिस्ट को ब्लेम मत करना, लिपस्टिक टिकी नहीं, रफ लग रही थी, ड्राई हो गई थी। इट इज योर लिप्स, इट इज नॉट द लिपस्टिक, नॉट द लिपस्टिक एप्लीकेशन, नॉट द मेकअप आर्टिस्ट। तो अगर आपके लिप्स अच्छे होंगे तो आपकी लिपस्टिक भी अच्छी लगेगी। सो लिप्स को अगर आपको एक्सफोलिएट करना है तो कर सकते हो। नेस्कैफे का 2 रुपए का पाउच आता है कॉफी का, वो ले लो थोड़ा सा फिंगर्स पे और अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब कर लो। ठीक है, आप एंजाइम स्क्रब भी यूज कर सकते हो, बट अगर बहुत बहुत ज्यादा डेड स्किन है और चैप्ड है लिप्स तो आप पाउडर्ड कॉफी ले लो, प्रॉपर फाइन पाउडर्ड नेस्कैफे की, और उसको आपके लिप्स पे एक्सफोलिएट कर लो और उसके बाद आप अच्छे से लिप बाम लगा लो। गर्ल्स, लिप ऑयल डोंट वर्क। लिप ऑयल सिर्फ शाइन देता है, वो ग्लॉस है बट विदाउट स्टिकीनेस, दैट्स द जॉब ऑफ अ लिप ऑयल। तो प्लीज लिप ऑयल्स पे वैसे खर्चे मत करो, एक अच्छा हाइड्रेटिंग नरिशिंग लिप बाम ले लो। लनेज महंगा लगता है, मतलब उसे कम रेंज वाले बहुत है, मैं कुछ के फोटोज यहाँ लगा दूंगी, आप इनमें से कोई भी लिप बाम ले सकते हो, इट वर्क्स वंडर्स। ठीक है, तो या चैप्ड लिप्स इज अ बिग नो नो। आपको बताते बताते मुझे याद आया कि मुझे भी थोड़ा सा इसे टॉप अप करना चाहिए। Last but not the least, stressing so much. Brides, I can completely understand कि आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, but trust me, you stressing will show up on your skin. ओके, बाद में बोलना नहीं मेरी स्किन डल लग रही है, मैं ऐसी थी नहीं, ऐसी हो गई हूँ। 3 चीजें आपको सबसे बेस्ट काम करेंगी, एक है सनस्क्रीन, 8 घंटे की नींद और बहुत सारा पानी। अगर आप ये 3 चीजें कर लोगे तो कितना भी स्ट्रेस होगा, अगर नींद पूरी कर लोगे तो स्ट्रेस से भी आप बैटल जीत सकते हो, लेकिन अगर आप नींद पूरी नहीं करोगे तो वो आपकी स्किन पे शो होने वाला है। सो ब्राइड्स, प्लीज डू नॉट स्ट्रेस, प्लीज डिवाइड योर वर्क, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पीपल इन योर हाउस, फ्रेंड्स, फैमिली, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड बेस्टीज, सबको थोड़ा थोड़ा सा काम डेलीगेट कर दो। ऐसा नहीं है कि सब आप खुद करोगे तो ही बराबर होगा। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत कुछ होता है करने के लिए, बट ट्रस्ट मी, दिस विल अफेक्ट योर स्किन, इट विल गिव यू एक्ने, इमीडिएट एक्ने। आपको आने भी नहीं वाला होगा तो भी आ जाएगा फटाफट, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज आपके हॉर्मोन्स भी चेंज होंगे, फ्लक्चुएट होंगे, तो वो एक्ने देगा ही देगा आपको। सो इट इज द बेस्ट वे इज टू अवॉइड स्ट्रेस, इज टू नॉट टेक स्ट्रेस. Okay guys, that's all for today and I hope you liked my new video and new series. I will be coming up every week with such wonderful tips and tricks and videos of this series. So do subscribe our channel and continue to like us. See you until next time.